اللہ کی قدرت ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی قدرت کو ماننے والا ہوں, وہ قادر مطلق ہے, میں اس کی قدرت کو مانتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بغیر کھانے کے میری بھوک مٹا سکتا ہے, لہٰذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ اللہ جل وعلا کی قدرت کو بھی مانو, اللہ کے قانون کو بھی مانو. اس کی قدرت یہ ہے, وہ اس بات پر قادر ہے, اگر وہ چاہے تو بغیر کھانے کے تمہاری بھوک مٹا سکتا ہے, لیکن اس کا قانون یہ ہے, وہ یہی فرماتا ہے کہ جب تک کھانا کھاؤ گے نہیں بھوک مٹے گی نہیں. اسی طرح کوئی شخص کہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگا دوں گا, کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے, اس کی قدرت ہے, وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. تو اللہ کی جانب سے یہی ارشاد ہے, میری قدرت کو بھی مانو, میرے قانون کو بھی مانو, ہر چند کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ آگ کو گلزار بنا دوں, لیکن یہ میری قدرت ہے, قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ اگر آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو جلو گے, مرو گے, لیکن میں بچاؤں گا اسی صورت میں جب تم میرے قانون پر عمل کرو گے. مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے, اللہ کے قانون کو بھی مانے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زہر کھلا کر زندگی بخش دے, تمہیں زہر دے کر زندگی بخش دے. تو اب کوئی شخص کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرے رب اس بات پر قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے, زہر کھلا کر بھی مجھے بچا سکتا ہے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے. لیکن مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے, قانون کو بھی مانے. اگر زہر کھایا تو پھر مرو گے. میری قدرت کا امتحان لیتے ہوئے جو شخص زہر کھا کے کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے, میرے رب کی قدرت ہے, تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے. حقیقی مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے, قانون کو بھی مانے. ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم قدرت کو بھی مانے, قانون کو بھی مانے. اب کچھ نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا رب جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, پروردگار عالم بھی ہے, غفار بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. ہمیں کسی در پہ جانے کی کیا ضرورت, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت, ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی کیا ضرورت. ہمارا رب اس بات پر قادر ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ چاہے تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ کی جانب سے جواب بھی یہی ملے گا, میری قدرت کو بھی مانو, میرے قانون کو بھی مانو. ہاں میں قادر ہوں اس بات پر, جسے چاہوں معاف فرما دوں, جسے چاہوں مغفرت کا پروانہ مل جائے, لیکن معاف کروں گا اسے جو میرے قانون کو مانے. اور قانون یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے حاضری کا شرط حاصل نہیں کیا, اور اگر میرے محبوب کی گستاخی کی, اور اگر وسیلے کا انکار کیا, میرے محبوب کی توہین کی, تو رات دن اللہ اللہ کا ورد کرتے رہو, تبلیغیں کرتے رہو, دین کی دعوت دیتے رہو, درس قرآن دیتے رہو, درس حدیث دیتے رہو, لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہو, دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہو. تم کہو میں خطیب اعظم ہوں, تم کہو میں مفتی اعظم ہوں, تم کہو میں محدث ہوں, تم کہو میں محقق ہوں, تم کہو کہ میں نمازی ہوں, تم کہو کہ میں جہادی ہوں, تم کہو کہ میں غازی ہوں, تم کہو کہ میں مجاہد ہوں. سب کچھ کرو, ہر عمل تمہارے منہ پہ مارا جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے, جس کو بریلی کے مجاہد نے بیان کیا. کہا انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت باتیں یہ ہیں, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں, اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. اللہ کے قانون کو بھی مانو, اللہ کی قدرت کو بھی مانو. ہم اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں, اور اسی لیے اعتقاد رکھتے ہیں. پھر اچانک کہہ دیا جاتا ہے ارے یہ کیسے ممکن ہے. ہم کہتے ہیں قانون کے لیے تو ہم نے قرآن کریم کی آیت پیش کی, قانون کے لیے ہم نے قرآن کریم کی آیت پیش کی. اب اگر اس کا انکار کرو گے تو تم قرآن کے مرتدی ٹھہرو, تم نے قرآن کا انکار کیا. لیکن کہا جاتا ہے عقلی دلائل سے ثابت کرو. یہ بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی بات اللہ یوں سنتا ہے, اولیاء اللہ یوں عطاؤں کی برسات کرتے ہیں اور یوں نوازتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نوازتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, اور پھر بڑی رعونت اور بڑے تکبر سے یہ کہہ دیا جاتا ہے ارے وہ تو ہماری طرح ہے, ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. بڑا خطرناک جملہ ہے, الیاذ باللہ, یہ کفار کا جملہ ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل ہیں, بشر مانتے ہیں, لیکن بشر کی رٹ لگانے کو ہم توہین سمجھتے ہیں, ہم توہین سمجھتے ہیں. اس پر انگلش میں ڈیٹیل میں میرے لیکچرز ہیں, اردو میں بھی موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج پورے دلائل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا فائدہ کیا, بھائی ملے گا کیا, وہ بھی تو ہماری طرح ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ آخر کس اعتبار سے تم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سمجھتے ہو؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں؟ کیسے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتا ہے؟ تم کس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو؟ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو, بتاؤ مجھے. کیا تمہارا کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی طرح ہے؟ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ
अना रसूलुल्लाह। तुम कहते हो कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तुम्हारा कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज हुजूर की नमाज की तरह नहीं। तुम्हारी नमाज क्या है? कितनी नमाजें फर्ज हैं तुम पर? कितनी नमाजें फर्ज हैं? कितनी फर्ज हैं? कितनी फर्ज हैं? 5 फर्ज है ना। हुजूर के मुतल्लिक फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें फर्ज हैं। तुम्हारी नमाज हुजूर की नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं। तुम अपने रोजे को देख लो, अपनी इबादत को देख लो। तुम रोजा रखते हो, हर रोजे में सहूर भी है, इफ्तार भी है, सहरी भी है, इफ्तार भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोजा रखते हैं जिसे सौम विसाल कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल न सहरी करते हैं न इफ्तार करते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करने की इंतहाई नहीं हो जाते हैं, इंतहाई कमजोर हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को देखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह रोजे रखने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुमने मेरी तरह। फिर एक और हदीस में फरमाया लस्तु मिस्लकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। एक हदीस में फरमाया लस्तु कहैअतिकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसें पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा रोजा हुजूर के रोजे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज हुजूर की नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं, तो मेरे दोस्त तू मुझे बता, मेरे भाई तू मुझे समझा, मैं कैसे मान लूं कि तू हुजूर की तरह है? कैसे मान लूं कि तू हुजूर की तरह है? तू अपनी ज़कात पे गौर कर ले, तू भी ज़कात देता है, लेकिन क्या तुझे पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फर्ज ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फर्ज ही नहीं है। तेरे अरकान इस्लाम 5 हैं, मेरे आका के अरकान इस्लाम 4 हैं। तुझ पर ज़कात फर्ज है, उन पर ज़कात फर्ज ही नहीं। तू फिर भी कहता है मैं मुस्तफ़ा की तरह हूँ। हुजूर पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? गाँव का साहब ने बताया था बड़े बड़े अकाबिर उलमा भी इस महफिल में आएंगे। क्या तुम जानते हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? ये मसला थोड़ा सा वजनी है, लेकिन आशिकों की महफिल है, इसका वजन उठा लेंगे इंशाअल्लाह। ज़कात अदा कब होती है? क्या आप जानते हैं ज़कात कब अदा होती है? ज़कात उस वक्त अदा होती है, नहीं वो तो मालिक के निसाब के हवाले से बता रहे हैं ना, मैं अदायगी के बारे में बता रहा हूँ। ज़कात अदा उस वक्त होती है कि जब मालिक की मिल्क से निकलकर काबिज के कब्जे में आ जाए। जब मालिक की मिल्कियत से निकल जाए, निकलना शर्त है। ज़कात अदा उस वक्त होती है जब वो मालिक के मिल्क से निकल जाए, उसकी ओनरशिप से, उसकी पोजेशन से निकल गई, फिर ज़कात अदा होगी। देखिए फिक्र का एक मसला है, अल वलदु व मा फी यदिही कान लि अबीही, बेटा और बेटे की सारी जायदाद दर हकीकत उसके बाप की जायदाद है। अल वलदु व मा फी यदिही कान लि अबीही, एक बेटा और उसकी सारी जायदाद, उसकी सारी मिल्कियत, जिस चीज का वो मालिक है वो दर हकीकत उसके बाप की है। अब बाप अगर अपने बेटे को ज़कात देगा तो बाप की मिल्कियत से निकलेगी ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि बेटा अगर मालिक बनेगा तो बेटे की जायदाद दर हकीकत उसके बाप ही की जायदाद है। अल वलदु व मा फी यदिही कान लि अबीही, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि जब वो अपने बेटे को ज़कात दे रहा है गोया कि वो खुद अपने आप को दे रहा है। एक और जुज़िया भी समाज फरमा लीजिए, कहा अल अब्दु व मा फी यदिही कान लि मौलाहु, अल अब्दु व मा फी यदिही कान लि मौलाहु, एक गुलाम और गुलाम की तमाम मिल्कियत दर हकीकत उसके आका की होती है, दर हकीकत उसके मालिक की होती है। गुलाम और गुलाम के पास जो कुछ भी है दर हकीकत उसके मालिक का है। अब समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आपकी वाह पर आपको वाह कहता हूँ। बहुत दूर पहुंच के अभी मैंने मसला मुकम्मल ही नहीं किया है। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, उनके लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट बता रही है कि माशाअल्लाह यहाँ पर साहिब फन भी बैठे हैं, असहाबे फिक्र भी बैठे हैं। अल वलदु व मा फी यदिही कान लि अबीही, बेटे के पास जो कुछ भी है उसके बाप का है। एंड इसी तरह अल अब्दु व मा फी यदिही कान लि मौलाहु, गुलाम के पास जो कुछ भी है उसकी सारी मिल्कियत, उसकी सारी जायदाद दर हकीकत उसके मालिक की होती है, दर हकीकत उसके आका की होती है। भाई बैठियो, दर हकीकत उसके आका की होती है, वो खुद मालिक नहीं होता, वो खुद मालिक नहीं बनता। अब कोई आका अपने गुलाम को ज़कात देगा तो वो आका दर हकीकत अपने आप को ही दे रहा है, क्योंकि गुलाम की मिल्कियत, गुलाम की जायदाद का मालिक दर हकीकत आका है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे आका अगर किसी को ज़कात दें तो बताओ किसको देंगे? मेरे आका अगर ज़कात देंगे तो किसको देंगे? फरमाया महबूब तुझ पर ज़कात फर्ज नहीं, क्योंकि सारी दुनिया तेरी नौकर है। सारी दुनिया है ही उनकी गुलाम,
है ही उनकी नौकर, है ही उनकी चाकर। वो ज़कात देंगे तो किसको देंगे? मैं कहता हूँ तेरे अरकान इस्लाम 5, मेरे आका के अरकान इस्लाम 4। अरे तेरी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं, तू फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है, कि रोज़े की तरह नहीं। तेरी ज़कात मेरे आका की ज़कात की तरह नहीं। अब तू खुद बता, क्या तेरा चेहरा मेरे आका के चेहरे की तरह है? उनके चेहरे के मुतल्लिक तो फरमाया कान्न शम्स तजरी फी वजहिही, गोया कि मेरे आका के चेहरे में सूरज तैर रहा है। कुछ लोग चांद कह दिया करते हैं, हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के मुंह पे छाइयां, मदनी का चेहरा साफ है। तू अपना चेहरा देख, ये मुंह और मसूर की दाल। तू कहता है कि मैं मुस्तफा की तरह हूँ, मैं आका की तरह हूँ। तू कैसे आका की तरह हो सकता है? तेरा चेहरा उनके चेहरे की तरह नहीं। तू अपनी फैमिली को देख ले, क्या तेरी ज़ौजा के मुतालिक कुरान करीम में कोई आयत नाजिल हुई है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के मुतालिक अल्लाह इरशाद फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, हे मेरे महबूब की अज़वाज मुतहहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मैं कहता हूँ मेरे आका की अज़वाज मुतहहरात जब आम औरतों की तरह नहीं है तो हुजूर आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं? तुम अपनी औलाद को देख ले, तेरी औलाद के मुतालिक कोई आयत नाज़िल नहीं हुई। अभी आयत ततहीर का जिक्र गुजरा, उनकी औलाद को अल्लाह ने पाक फरमा दिया है। अहले बैत अतहार पाक हैं हर किस्म के रिज़्क़ से। तेरी औलाद उनकी औलाद की तरह नहीं। तो अपने आप को देख, अपने जिस्म को देख, अपने आज़ा को देख, अपनी आंखों को देख ले, अपने हाथों को देख ले, फिर मुझे बता किस तरह तू कहता है कि तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तू अपने जिस्म को देख ले, अपनी उंगलियों को देख ले, अपने कानों को देख ले, अपने पाँव को देख ले, अपनी आंखों को देख ले। तेरी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, और मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। इस माँ के उमूम में कितनी वसअत है, इस माँ के उमूम में कितने अफराद शामिल हैं। इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, हर वो चीज जो तुम नहीं सुन सकते मैं वो सुनता हूँ। इन्नी अरा मा ला तरौन, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। यानी हम यहाँ मौजूद हैं, क्या आपको पता है इस वक्त कराची में क्या हो रहा है? क्या आप देख सकते हैं इस वक्त लाहौर में क्या हो रहा है? क्या यहाँ से आप देख सकते हैं क्या इस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में क्या हो रहा है? क्या अगर कोई मदीनतुल मुनव्वरा से तुम्हें पुकारे तो तुम सुन सकते हो कि मदीने वाले तुम्हें क्या कह रहे हैं? फरमाया इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। तुम यहाँ से मदीने की बातों को देख नहीं सकते, मदीने के वाकयात को देख नहीं सकते, मदीने वालों की आवाज सुन नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया मैं हर उस चीज को सुनता हूँ जो तुम, हर उस चीज को देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। यानी हमें यहाँ से मदीने वाले नजर नहीं आते, मदीने वाले आका को हारूनाबाद वाले नजर आ रहे हैं, हम नहीं देख सकते। इब्ने हजर अल-अस्कलानी ने बड़ी खूबसूरत रिवायत नकल की है कि शब मेराज जिब्रील अमीन ने जब मेरे आका के कल्ब अतहर को देखा ना, जब मेरे आका का सीना, पाक सीना जब खोला गया तो मेरे आका के कल्ब अतहर को देखा जिब्रील अमीन ने, तो कहा फीही ऐनान व उज़ुनान, मेरे आका के दिल में 2 आंखें भी हैं, 2 कान भी हैं। मेरे आका के दिल में 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। मैं कहता हूँ तेरी 2 आंखें, 2 कान, मुस्तफा की 4 आंखें, 4 कान, तू फिर भी जुर्रत करता है कि मैं मुस्तफा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी आंखें उनकी आंखों की तरह नहीं, तेरे कान उनके कानों की तरह नहीं, तो फिर भी कहता है कि तू मुस्तफा करीम की तरह है। तू मुझे समझा मेरे दोस्त, बता कि आखिर कैसे तू मुस्तफा करीम की तरह है, आखिर कैसे तू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। तू अपने पसीने को ही देख ले, तेरा पसीना जब तेरे जिस्म से निकलता है तो लोग मुतनफ्फिर हो जाते हैं, नफरत महसूस करते हैं। कोई करीब से गुजरे तो नाक बंद कर लेता है। और मेरे आका का पसीना कैसा है? सही मुस्लिम की हदीस है, हदीसें मैं पेश कर रहा हूँ, कोई बुखारी की है, कोई मुस्लिम की है। हजरत उम्मे सुलैम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका सो रहे हैं, उम्मे सुलैम मेरे आका का पसीना जमा कर रही हैं। आका आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्मे सुलैम, है उम्मे सुलैम तू क्या कर रही है? उम्मे सुलैम कहती हैं नरजू बरकतहू लिसिबियानिना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत जमा कर रही हूँ, बरकत की उम्मीद रखे हुए हूँ। मेरे आका ने फरमाया असक्ति, तूने सही किया, तू हद तक पहुंच चुकी है। मैं कहता हूँ मेरे आका का पसीना इतना मुबारक है, इतना मुअत्तर है कि बच्चों को शिफाएं देता है, और तेरे पसीने को कोई सूंघने के लिए तैयार नहीं है। तेरा पसीना निकलता है, लोग नफरत महसूस करते हैं, तेरा पसीना उनके पसीने की तरह नहीं, तो फिर भी कहता है कि तू मुस्तफा करीम की तरह है। तो बता, तू अपने खून पर गौर कर ले, तेरा खून क्या है? तेरा खून अगर किसी कपड़े पे लग जाए नमाज अदा नहीं होती, निजासत गलीजा है तेरा खून। और अगर तू नापाकी की हालत
हालत में नमाज पढ़ेगा ये जानते हुए कि तू नापाक है और नमाज पढ़ता रहेगा तो ईमान सल्ब होने का भी अंदेशा है, क्योंकि तू नमाज की तौहीन कर रहा है। अगर तूने नमाज की तौहीन की, दीन इस्लाम से निकल जाएगा, पता चला तेरा खून अगर तेरे जिस्म में लग जाए, तेरा खून अगर किसी कपड़े पे लग जाए तो तेरा खून जहन्नमी बना देता है। लेकिन मेरे आका का खून मुबारक कैसा है, एक सहाबी ने मेरे आका का खून चूस लिया, लोग देख रहे हैं ये खास सहाबी क्या करेंगे, थूकेंगे या नहीं थूकेंगे, कहा खून का क्या किया, थूका, कहा नहीं ये खून मुस्तफा है इसे थूका नहीं जाता, क्या किया, कहा निगल लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसके बदन में अब मेरा खून है। अब अगर कोई दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहता है तो इस सहाबी का दीदार कर ले। अरे तेरा खून लोगों को जहन्नमी बनाए, उनका खून जिसके जिस्म में है वो दुनिया में ही जन्नती बन जाए, तो फिर भी कहता है तो मुस्तफा की तरह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। बताओ आखिर किस एतबार से, कैसे तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो, किस तरह तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुवाज़ना कर सकते हो। तुम अपने थूक को देख लो, तुम थूक के दिखाओ, तुम्हारे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तुम्हारे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे आका का लुआबे दहन कैसा प्यारा है, सहाबी जख्मी हो जाते हैं, आका अपना लुआबे दहन उसके जख्म पर मलते हैं, सहाबी शिफायाब हो जाते हैं। अभी कमोका साहब इनकी आंखों में अश्कों की बरसात बता रही है कि इन्हें आका का हंसी मुखड़ा याद आ गया है, और मुझे आका के लुआबे दहन का एक हंसी वाकया याद आ गया है। अभी चंद लम्हात पहले मैंने एक इमाम